फेसबुक लाईव्ह घेऊन जातात ते विदिन 1 or 2 मोमेंट मध्ये. Yes, we are on Facebook live now. So we are going to start the session immediately. So welcome you all. Namaste, मी दीपाली चांडक, डिरेक्टर WX कन्सल्टंट प्रायव्हेट लिमिटेड, विजडम एक्स्ट्रा. खरं तर हा पूर्ण संवाद किंवा ही पूर्ण पॅनल डिस्कशनची संकल्पना का आली, कारण की बदलती शिक्षण प्रणाली, बदलते उद्योग, बदलते व्यवसाय आणि त्यातून बदलणाऱ्या करिअरच्या संधी आणि त्यातनं ह्या प्रवाहाला अनुसरून असं माझं आणि मान्य संपत साठे सरांचं एक डिस्कशन झालं की वी मस्ट हॅव टू ऑर्गनाइज सच काइंड ऑफ पॅनल डिस्कशन which would be helpful for the students, for parents, as well as for the academicians ki what the skill development department is providing ahead. So that's why this initiative, joint initiative by the Directorate of Skill Development, Employment, Entrepreneurship, Government of Maharashtra, Nasik department, and as well as by Wisdom Extra. We jointly welcome you all for this forum. I specially welcome Dr. Parag Kalkar sir, who is the Dean of Faculty of Commerce and Management at Savitribai Phule University. As well as I welcome Mr. Sampat Chate, Assistant Commissioner, Skill Development, Employment and Entrepreneurship, and as well as Mrs. Rajul Kastia, Director of Head Start, who is one of the very popular career counselor. So we welcome you all, my panel members, as well as we also appreciate and we also welcome all participated institutes, schools, colleges, those who are now with us as a career partner, because we understood and we agreed you are playing prime role in the career development of the students in nurturing their futures. So we this journey, this thought process, this discussion is without you all is absolutely incomplete. To have a word on the future or on the career of student, so that's why we welcome you all. 18 institutes, those who are 18 to 19 institutes and colleges, those who are with us. We have Sabka Knowledge Hub, Matoshri Institute of Technology, Shri Shri Ravi Shankar Vidya Mandir. We have College of Polytechnic, KK Wagh College of Pharmacy, Amro College of Hotel Management, Siddhi Jan Kalyan Sanstha, Taharabad, Nasik. Then Ashoka Business School, we have Sandeep University. Then the James English Medium School, Siddhi English Medium School, again Taharabad. Then Guru Govind Singh College of Engineering and Research Center, we have Sandeep Technology Business Incubator Center, JDC Bitco Institute of Management Studies and Research. We have MVP KBT College of Engineering, GH Raisoni College of Engineering, Ahmednagar, Sindhu Sagar Academy Nasik, RK Kalani Junior College, Amrut Vahini College of Engineering, as well as we have Panchvati Education Trust. Am I audible to all? Yes, sure. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, and as well as this the list, and we have so many academicians with us right now, those who are connected with us live on Facebook now. So if I skip some names, then it's a sincere apology from my side, but welcome you all, as well as during this process of thinking, during this journey, 4 supporters are with us, those who supports us to organize this event, those who help us to connect with us different institutes and college, as well as skill development department is a main part of the organizer, and the supporters are IWC Gen Next College. Nandini Ramchandani madam is a president of that club. Welcome ma'am. Mr. Deepak Shah, vice president of Rotary Club of Nasik North. Welcome Deepak sir. Samir Shah sir, who is always with us, being a source of technology support. Samir Shah, without you our technical forum is incomplete. So welcome Mr. Samir Shah from the Sumeru EduTech, and as well as Swati Shah madam from the vice president of the Swayam Shakti. Welcome you all. So now हे session technically सुरू करण्याच्या आधी I would really like to have just a simple thought process with you all, how we are going ahead, because of a meeting with immediate meeting with Vice Chancellor Parag Kalkar sir, Dean of the Commerce and Management, would join with us shortly.
within 10 to 15 minutes, but we have proceed for that. Chate sir, with your permission, shall we start immediately with the panel? uh, okay, so the flow and the process is like that ki we have some questions from the students, from the parents, from our database, and so I would try to find out the solution with help of you for those questions, as well as I request all academic representatives. So if you have any questions in your mind, so please raise your hand. So by that way, we will have your questions also for the panel one by one. So my first question is for the Chate sir. So namaste sir. Again welcome for this forum. नमस्ते. मला आपल्याला असं सांगायचं आहे की सर, आपण ह्या क्षेत्रामध्ये ह्या डिपार्टमेंट बरोबर खूप वर्षापासून खूप वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज करतात. आय रिअली लाईक टू शेअर विथ यू ऑल की चाटे सर इज अ व्हेरी ऍक्टिव्ह मेंबर, a very active department head who is initiative different activities. आणि ह्या ऍक्टिव्हिटी घेत असताना सर मला आपणास विचारायचं आहे की ह्या डिपार्टमेंट बद्दल, म्हणजे स्किल डेव्हलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट आणि एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट, की ज्याला तुम्ही रिप्रेझेंट करतात, नेमकं हे डिपार्टमेंट काय ऍक्टिव्हिटीज करतं, कुणासाठी त्या ऍक्टिव्हिटीज असतात आणि त्याचा विद्यार्थ्यांना किंवा पालकांना, अकॅडमिशियन्सला कसा फायदा होऊ शकतो, ह्याबद्दल सर आम्हाला पहिलं माहिती द्या. नमस्कार आणि सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. WH यांच्या संचालिका दीपाली मॅडम आणि आमचं कार्यालय जिल्हा कौशल्य विकास. आवाज येतोय? माझा आवाज येतोय? येस सर, आरी आवाज. तर आमचं कार्यालय जॉईंटली आम्ही हा विचार करून, जसं दीपाली मॅडमनी सांगितलं त्याप्रमाणे आम्ही आपल्यासोबत चर्चा करावी आणि नवीन स्किल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट बाबत थोडंसं आपल्याला अवगत करावं, आपलेही प्रश्न समजून घ्यावे आणि जॉईंटली आपल्याला पुढे कसं जाता येईल, या अनुषंगानं कसं काम करता येईल याबाबत चर्चा व्हावी या हेतून, आणि आपल्यालाही मार्गदर्शन व्हावं की शासनाचा स्किल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटचा, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंटचा काय यापुढे इनिशिएटिव्ह आहे. बेसिकली पूर्वीचं हे सेवायोजन कार्यालय, या कार्यालयाकडे फक्त पूर्वी बेरोजगारांची नोंदणी व्हायची, वेगवेगळे एम्प्लॉयर्स तिकडे रजिस्टर्ड असायचे आणि त्यांना नावं पाठवली जायची. आपल्या सर्वांना हे माहिती आहे. तुम्ही करायचं नाही यार समोर. परंतु काळाबरोबर हे सगळं बदलत गेलं. सुप्रीम कोर्टाने 1996 साली एक जजमेंट आणला आणि त्या जजमेंटमुळे पूर्णतः एम्प्लॉयमेंट मार्केट बदलून गेलं. मला खूप जी सेवायोजन कार्यालयांची मोनोपोली होती ती संपली आणि सुप्रीम कोर्टाने एक जजमेंट दिला की ज्या ज्या काही ठिकाणी रिक्रुटमेंट होईल, शासनामध्ये असो, प्रायव्हेट तर करतच होते, तिथे तिथे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेसला तर नोटिफाय करायच्या वॅकन्सी, परंतु प्लस जाहिराती द्यायच्या आणि जाहिरातीद्वारे आणि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यांच्याकडून मिळालेली नावं एकत्र करून मग गुणवत्तेनुसार निवड करायची. आणि या निर्णयाची अंमलबजावणी महाराष्ट्रामध्ये 2003 पासून सुरू झाली आणि पूर्णतः सगळीकडे आपल्याला आता दिसत असेल की एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजचं नाव असं आपल्याला दिसणार नाही आता, परंतु जाहिराती मात्र वृत्तपत्रांमधून आपल्याला दररोज दिसतात. परंतु एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आजही आहे, त्याचं नाव काळानुरूप आम्ही सुद्धा आमच्यामध्ये बदल करून घेतला आणि या कार्यालयाचं नाव रोजगार व स्वयंरोजगार झाला आणि 2014 मध्ये, आणि त्यानंतर पुन्हा बदल आला. मला वाटतं बाकीच्यांनी आपले माईक म्यूट करावे तात्पुरते, मग आपण पुढे जाऊ. थोडीशी पार्श्वभूमी सांगतो, कारण आपल्याला विद्यार्थ्यांसमोर आता सोबत घेऊन आपल्याला त्यांना पुढे न्यायचंय बदलत्या परिस्थितीकडे. त्याच्यानंतर 2010 पासून तसं स्किल डेव्हलपमेंट मिशन देशामध्ये सुरू झालं, परंतु त्याला वेग नव्हता. माननीय पंतप्रधान आपले मोदी साहेब 2014 मध्ये यांचं सरकार आलं आणि त्यांनी खूप मोठा इनिशिएटिव्ह याच्यामध्ये घेतला आणि स्किल मिशनला, कौशल्य विकासाला त्यांनी प्राधान्य दिलं आणि त्यांच्या टॉप अजेंड्यामध्ये आणलं. कारण भारताची लोकसंख्या आता खूप युवा झालेली आहे. आपण 65% पर्यंत आता आपण तरुण अवस्थेमध्ये जाणार आहोत. जगातले जे तरुण देश आहेत त्या तरुण देशामधला एक देश आपला असणार आहे की जिथं आपण ह्युमन कॅपिटल आपलं असणार आहे आणि हा ह्युमन कॅपिटल हा पूर्णपणे रिसोर्स कॅपिटल मध्ये बदलावा या हेतून आपलं मनुष्यबळ आता पूर्णपणे
आपल्याला कौशल्य आधारित मनुष्यबळ असणं आवश्यक आहे. आणि यानुसार 2015 मध्ये गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियानं सुद्धा डिपार्टमेंटची नव्यानं निर्मिती केली, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता. याच धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यानं सुद्धा कौशल्य विकास व उद्योजकता असं डिपार्टमेंट, जे आमचं पूर्वीचं रोजगार स्वयंरोजगार होतं, याचं नामकरण केलं. आता हे डिपार्टमेंट जे आहे राज्य सरकारचं, हे कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग असं हे डिपार्टमेंट आहे की तिन्ही. याची मूळ संरचना अशी आहे की आम्हाला असं लक्षात येतो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस मधून की आपलं मुलं पारंपरिक शिक्षण घेत आहेत आणि जेव्हा ती नाव नोंदणी करतात आणि जेव्हा ते मुलाखतीला सामोरं जातात तेव्हा त्यांच्यामध्ये काहीतरी कमी दिसतं आणि म्हणून ती सिलेक्ट होत नाही असं आम्हाला आढळून आलं होतं. आणि यानुसारच राज्य शासनानं 2012 पासूनच आपल्या तयारी सुरू केली होती की कौशल्य, स्किल, एम्प्लॉयमेंट आणि एंटरप्रेन्योरशिप या तिघांचं एक सर्कल करून या तिघांना एकमेकांना कनेक्ट केल्याशिवाय ही जी आपली तरुण पिढी आहे हिच्या हाताला काम मिळणार नाही. ज्यांना रोजगार करायचा आहे त्यांनी रोजगार, म्हणजे ज्यांना एम्प्लॉयमेंट मध्ये जायचंय, प्रायव्हेट असो की सरकारमध्ये, त्यांनाही जाता यावं. ज्यांना स्किल घेऊन प्रायव्हेट मध्ये ज्यांना काम करायचंय, कारण प्रायव्हेट मधलं क्षेत्र हे कौशल्याशिवाय असूच शकत नाही. कारण प्रायव्हेट मध्ये जोपर्यंत स्किल नाही तोपर्यंत आपल्याला जॉब नाही. आणि ही जी बदलती परिस्थिती आहे, या बदलत्या परिस्थितीमध्ये कौशल्य विकासाचं मोठं काम आपल्याला राज्यामध्ये सुरू झालं, देशामध्ये सुरू झालं. वेगवेगळ्या योजना आल्या, बरेच कॉलेजेस आहेत की ज्यांना माहिती आहे की त्यांनी सुद्धा याच्यामध्ये भाग घेतलाय, त्यांनी बदल घडून आणलाय. आताची शिक्षण पद्धती, आता हा जो कोविड-19चा जो साथरोग आपल्या जगामध्ये आलाय, यांनी तर पूर्णतः आपलं पूर्ण स्ट्रक्चर आता बदलून टाकणार आहे. आणि येणारी जी पुढचा जो काळ आहे, अत्यंत बदलाचा काळ आहे. एका दृष्टीनं हा अपॉर्च्युनिटी आहे आपल्या देशासाठी की याला पूर्णपणे आपण या संधीचं सोनं करायचं. आणि म्हणून राज्य सरकार, केंद्र सरकार ही पूर्ण आपल्या नीती बदलत आहे. केंद्र सरकारने MSME जसा नारा दिलाय माननीय पंतप्रधानांनी की आत्मनिर्भर भारत, की आपल्या देशामध्ये आपल्याला ज्या वस्तू लागत आहेत, ज्या सेवा लागत आहेत, या सेवा इथंच आपल्याला मिळाव्यात. परदेशावरती आपण कमीत कमी अवलंबित्व आपलं असावं आणि आपला पैसा आपल्याच देशात राहावा. आपल्याला एक्सपोर्ट करता यावा, बाहेरच्या जगाची गरज भागवता यावी. आणि म्हणून आपलं पूर्ण MSME सेक्टर असेल, आपलं इंडस्ट्री सेक्टर असेल, हे सगळे सेक्टर, बँकिंग आहे, बाकीचे ऍग्रिकल्चर सेक्टर, या संपूर्ण सेक्टरमध्ये बदलाव आणण्याची प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणावरती सुरू झाली आहे. आणि केंद्र सरकार मार्फत आत्मनिर्भर भारताची योजना आणून आता मोठ्या प्रमाणामध्ये यामध्ये आपल्याला आता MSME ला ताकद देण्याचं काम सुरू झालंय. तर आता जे हे पारंपरिक शिक्षण आहे, मला आनंद वाटतो आणि आपल्या सर्वांचं अभिनंदनही करावं वाटतं की आपण पुणे युनिव्हर्सिटी सारख्या युनिव्हर्सिटीच्या अधीनस्थ महाविद्यालय आपली आहेत. आणि ही युनिव्हर्सिटी एक पाऊल पुढे आहे सर्वांच्या. भारतामध्ये असा डिग्री कोर्स सुरू करणार हे महाराष्ट्रामध्ये तरी पहिली युनिव्हर्सिटी आहे. आणि आपल्या नाशिक जिल्ह्यामध्ये सुद्धा अनेक कॉलेजेस आहेत की ज्यांनी BHope कोर्सेस सुरू केले. पारंपरिक शिक्षण जरूर काही एका लेवल पर्यंत जरूर ठीक आहे, परंतु या शिक्षणाबरोबर आता कौशल्य आपल्याला मिळवल्याशिवाय पर्याय नाही. आणि म्हणून आपले जे विद्यार्थी आहेत, या विद्यार्थ्यांना आपल्याला कौशल्याकडे घेऊन जावं लागणार आहे. BA, BSc या पारंपरिक शिक्षणाच्या सोबत आपल्याला आता त्याला कुठलं तरी स्किल, मुलांना आयडेंटिफाय करून त्याला काय लागतं, त्याचा इंटरेस्ट कोणीकडे आहे हे सगळं बघून त्या इंटरेस्टच्या आधारानं महाविद्यालयाने आता त्याला कुठलं तरी स्किल इम्पार्ट करणं गरजेचं आहे. त्याशिवाय तो मुलगा किंवा तो युवती आपल्या करिअरला खऱ्या अर्थानं ते करिअरमध्ये पाऊल ठेवू शकणार नाही. आणि म्हणून आता इथून पुढचा काळ आणि इथून आज नंतरची आपली जी भूमिका आहे महाविद्यालयांची, ती अतिशय महत्वाची होणार आहे. आणि आपल्यावरतीच संपूर्णतः इथून पुढचा अवलंबून असणार आहे. कौशल्याचे अनेक मार्ग आता निर्माण झालेले आहेत, ते आपण चर्चेमध्ये नक्कीच पुढे जाऊ शकू. दीपाली मॅडम. हा सर, ऍक्च्युअली तेच आम्हाला मुळात ह्या डिपार्टमेंट बद्दलची एक सुरुवात की हे डिपार्टमेंट नेमकं कोणकोणत्या क्षेत्रात काम करतं, ते खूप इनोव्हेटिव्ह कॉन्सेप्ट की स्किलिंग मध्ये पण आहे, उद्योजकतामध्ये म्हणजे एंटरप्रिनरशिप मध्ये पण आहे, आणि मी म्हणेल की करिअर अपॉर्च्युनिटीज आणि जॉब मध्ये पण आहे. तर जसं
मला सगळ्यांना सांगायला आवडेल की सर ऑर्गनायझिंग और दिस डिपार्टमेंट इज कंटिन्युअसली ऑर्गनायझिंग job fairs for the students and as well as various EDP program. So I request all institutes so you can connect to this department to organize the job fairs and to organize EDP programs for your students as well. सर माझा पुढचा प्रश्न आम्हाला आता फेसबुक वरती लाईव्ह झाल्यामुळे आपल्याला बरेच Excuse क्वेश्चन्स me, आहेत ma'am. तर येस. Can you speak in Hindi or English? Okay, fine. So let's we have this session in Hindi and English mix. It would be fine. Then Yeah, we can thank you. go Thank you for so much. okay, fine. So now my next question is for the Rajul Kastia ma'am. Ki ma'am, since long in this career in this domain of career counseling, what you would like to share about what is career counseling and why it is important? Okay. First of all, a very welcome to all the parents, to all the accommodations, all the teachers, and all the students who have joined us. So, welcome all of you, and a very big thank you to Wisdom Extra as well as Dipali Chandak ma'am to give me this opportunity and to invite me in with the esteemed people like Mr. Chate and Mr. Kelkar. So, thank you so much for this opportunity. Now, Dipali ma'am, coming to your question. आपका question था is that what is career counseling? So answering that question, career counseling put in very simple terms, this is where we are as career counselors, as the career counseling community, we are able to assist and guide students as well as their parents. Please note, I'm talking about students as well as parents को हम guide करने की कोशिश करते हैं so that they can take an informed decision regarding the right career choice for their child. Why is it that I call it an informed career decision? Because अगर हम पहले का सोचते थे, आज के probably कुछ साल पहले तक अगर एक बच्चे को 90% आता था तो it was a fixed thing कि तीन domains हैं, there is science, there is commerce and there is arts. तो बच्चा अगर 90% प्लस है तो probably उसको साइंस में ही जाना है. अगर बच्चा थोड़ा पढ़ाई में वीक है तो प्रोबेबली उसके लिए आर्ट्स बना है. बट आई एम सो ग्लैड कि आज ये थॉट प्रोसेस, ये थिंकिंग जो थी पहले, अब वो चेंज हो रही है. पेरेंट्स आर फाइन कि अगर मेरा बच्चा 90 प्लस भी है, डजंट मैटर, साइंस में भी अच्छा है, बट अगर उसका इंटरेस्ट आर्ट्स में है तो देन प्रोबेबली वी शुड अलाउ हिम टू परस्यू आर्ट्स. पहले ऐसा होता था कि अगर बच्चा, पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया है कि बच्चे को साइंस फील्ड ही लेना है क्योंकि बच्चे को हमको या तो डॉक्टर बनाना है या तो इंजीनियर बनाना है. बच्चे के पेरेंट्स के नेबर के बच्चे ने कुछ अचीव कर लिया, IIT IIM चला गया, ओके फाइन, हमारे बच्चे को भी वही करना है. अब वो थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है. अब ये सोचने लगे हैं पेरेंट्स भी कि मेरे बच्चे को जिस चीज में इंटरेस्ट है, अगर आज मेरा बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं है, मैथ्स में वीक है मेरा बच्चा, तो आई डोंट ट्राई दैट मैं उस बच्चे को ये करूं कि उसको ट्यूशंस में डालूं और उसको कुछ भी करके बोलो कि नहीं तुझे साइंस ही करना है, तुझे साइंस मैथ्स लेना ही लेना है. Instead of focusing on what is the child's weak points, it is better that we focus on what is their उनके strong points क्या है, what are their strong points, and then help them. So in that process, career counseling plays a very important part because we are here because we have scientific tools like a psychometric test, a huge database of more than 500 plus careers, 20,000 plus colleges. So with that, with the help of the expertise of a career counselor and with the help of the psychometric test, which judges your child based on his interest, कि उसका interest कौन से field में है, उसका personality कि वो किस चीज के लिए बना है, as well as उसका aptitude, that is I mean his knowledge, his skills, उसका skill set क्या है, उसके basis पे हम एक decision पे पहुंचते हैं कि these are the career choices that he has. And फिर आप उस career choices पे explore करके you can take a holistic view आपको मिलता है and उसके basis पे एक judgment लिया जा सकता है कि मेरा बच्चे के लिए कौन सा field सबसे सही है, मेरे बच्चे को कौन सा career choose करना चाहिए. So career counseling here helps the child and the parents to take an informed decision, a holistic decision based on the choices that come up after
discussion with the parents and the child after the psychometric test, and after viewing all the options that he has, what are the career prospects in that option, the maybe all the options that he has, he can go ahead and see कि उसमें career का अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है उसके लिए, वो स्किल सेट उस बच्चे के पास है या नहीं, that has already been derived using the psychometric test. So this way एक बच्चा जो 10th में है, 12th में है, या even as much as if a child is in graduation, we can provide guidance and help him take the right career decision. Yes, ma'am. Thank you so much. Because now ma'am being even a parent, even being from academics since long, और बहुत बार ये क्वेश्चंस आता है कि करियर काउंसलिंग क्यों और करियर काउंसलिंग की क्या जरूरत है। लेकिन करियर काउंसलिंग के अंदर हमेशा देखा गया है कि एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है और उसके बाद उसके रिजल्ट्स मिलते हैं, एंड दैट इज ओनली द करियर काउंसलिंग। पर वहां पे कहीं पे स्किलिंग का कोई टच नहीं है कि क्या करना चाहिए आगे, सिर्फ एक डोमेन बता के शायद आज इतना फायदे का नहीं है। सो दैट्स व्हाई माय क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन वाज फॉर यू। And now again I'm coming back to Chate sir. So Chate sir, our request is to please share ki what are the new skilling opportunities or courses available for the students now, और अगर ये students के लिए available है तो ये किस grade से available है, like 6th standard से available है, 8th standard से available है, और ये इसकी information हमें कहाँ पे देखने को मिलेगी? Yes. ऍक्च्युअली महाराष्ट्र शासनाचं कौशल्य विकास विभाग जो आहे याच्या अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी ही महाराष्ट्र स्तरावर काम करते, राज्य स्तरावर, आणि त्यांची इम्प्लिमेंटेशन आर्म म्हणून संपूर्ण राज्यामध्ये जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र ही काम करतात. सर मी एक डिस्टर्ब करू का मध्येच? आपल्याकडे काही अकॅडमिशियन्स आहेत की ज्यांची रिक्वेस्ट आहे की कॅन वी हॅव दिस डिस्कशन इन हिंदी और इन इंग्लिश. सो सर इज इट पॉसिबल टू गो अहेड इन हिंदी लिटिल और हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स? ओके, कोई बात नहीं. तो महाराष्ट्र राज्य में महाराष्ट्र स्टेट स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी ये स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करती है, और ये सोसाइटी के इम्प्लीमेंटेशन आर्म करके हर जिले में डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप गाइडेंस सेंटर काम करता है. कि जो पुराना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज था, अभी उसका नाम डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप गाइडेंस सेंटर ऐसा हुआ है. महाराष्ट्र राज्य इन्होंने 2015 में एक पॉलिसी लाई, और वो जो पॉलिसी थी स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रमोद महाजन कौशल्य विकास व उद्योजकता अभियान, आणि या अभियानाच्या अंतर्गत इसके अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ के स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम शुरू हो गए. उसके लिए प्राइवेट स्किल डेवलपमेंट संस्थाएं इम्पैनल करेगी हमारे साथ. ये पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, अभी आप जाके देख सकते हैं mahaswayam.gov.in. ये जो पोर्टल है, ये पोर्टल पर स्किल करके एक ऑप्शन है. ये तीनों एक ही पोर्टल पर अभी इंटीग्रेटेड है, स्किल, एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप. तो स्किल के बारे में पहले मैं अपडेट करूंगा आप लोगों को कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रमोद महाजन के अंदर जितना अपने जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो ड्रॉप आउट्स है, जिन्हें 7वीं 8वीं 10वीं जो फेल है या कोई 12वीं छोड़ के इन्होंने छोड़ दिया है स्कूल एजुकेशन, इनके लिए बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये था कि ये जो ड्रॉप आउट्स है या बाहर अभी है एजुकेशन के, इन्होंने अभी कोई स्किल लेके डायरेक्ट अपना करियर शुरू करना चाहिए, क्योंकि विदाउट स्किल उनको एक तो जॉब भी नहीं मिलेगी या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी वो कर नहीं पाएंगे. ये ऑब्जेक्टिव लेके डिफरेंट टाइप्स ऑफ नियर अबाउट अभी 1000 के अबव स्किल डेवलपमेंट के डिफरेंट कोर्सेस है. ये कोर्सेस का एक पूरा फ्रेमवर्क है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पर, जिसे हम नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बोलते हैं. ये फ्रेमवर्क के अंदर राज्य सरकार ये कोर्सेज चला रही है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंसीज के एम्प्लॉयमेंट जो स्किल डेवलपमेंट जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स है उनके माध्यम से. दूसरी चीज जो ये इस इम्पैनलमेंट करने के लिए जो जितने भी सेंटर्स है वो पोर्टल पर आके अपना इम्पैनलमेंट कर सकते हैं.
अभी मैं बताऊंगा कि इसका भी चेंज हुआ है अभी कि वो कैसे आ सकते हैं। तो जैसा वेल्डर है, हाउसकीपिंग है, कुक है, सीएनसी ऑपरेटर है, बेड साइड असिस्टेंट है, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डर है, फिटर है, ऐसे जितने भी कोर्स है, ये लॉन्ग टर्म कोर्सेस से अभी वो शॉर्ट टर्म कोर्स हुए। जैसा 100 आवर्स से 600, 700, 800, 1000 आवर्स ऐसा कोर्स हुआ है। और ये कोर्स के बाद बच्चा एक तो अप्रेंटिसशिप जा सकता है, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकता है, या कोई इंडस्ट्री में या प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए जा सकता है। ऐसे कोर्सेस अभी ये महास्वयं पोर्टल पर अवेलेबल है। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है, जो प्राइम मिनिस्टर स्कीम है, PMKUY, पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना। अभी ये PMKUY 1 हो गया, PMKUY 2.0 हुआ, अभी PMKUY 3.0 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाला था। अभी तक कोविड के कारण वो होल्ड हुआ है। अभी 1-2 महीने में उसका भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। और पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना 3.0 ये नए टाइप में ये अभी लॉन्च होगा। और इसका साइट अभी आप जाके देख सकते हैं, pmkuyofficial.org। ये वेबसाइट पर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा स्किल डेवलपमेंट का देख सकते हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन, जिसे हम NSDC कहते हैं, ये NSDC पूरा मॉनिटर करता है स्किल का पूरा इंडिया में। और हर स्टेट का मिशन बना हुआ है पूरे स्टेट्स में, और वो मिशन कनेक्टेड है NSDC से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हर स्टेट गवर्नमेंट ये मिलके स्किल डेवलपमेंट का मिशन चला रहे। और ये जो PMKUY 3.0 जो आएगा, इसमें आप कॉलेजेस का बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि अब गवर्नमेंट देख रही है कि जो छोटी छोटी संस्थाएं है ये तो करती है, लेकिन कॉलेजेस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये भी स्किल डेवलपमेंट के साथ कनेक्ट होने चाहिए। और जब वो ग्रेजुएशन होके बाहर जाता है तो उसके पहले उसके हाथ में स्किल होना चाहिए, यानी लास्ट ईयर में वो फुल्ली इक्विप्ड होना चाहिए, और वो स्किल के बाद वो सीधा अपना करियर शुरू कर सके। तो इसके लिए पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना 3.0 आएगी, स्टेट गवर्नमेंट की योजना है। और हर जिले में महाराष्ट्र सरकार ने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का स्कीम लाया है, और जो स्कीम हर डिस्ट्रिक्ट का असिस्टेंट कमिश्नर, मेरे जैसा नासिक के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, हर जिले में उनका जो असिस्टेंट कमिश्नर है स्किल डेवलपमेंट का, वो अपने जिले के लिए एक स्कीम चलाता है, जिससे हम किमान कौशल्य विकास कार्यक्रम कहते हैं, मिनिमम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जिला फंड है। नियोजन समिति ये पालक मंत्री के चेयरमैनशिप में एक कमेटी होती है, पूरे MLA उसके मेंबर होते हैं, कलेक्टर, माननीय कलेक्टर सर उसके सेक्रेटरी होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर वो पूरा मॉनिटरिंग करते हैं। तो हर जिले का 400 करोड़ 300 करोड़ बजट होता है, और वो बजट में से एक स्कीम स्किल की भी छोटी सी उसमें है, कि जिसमें 2-3 करोड़ का बजट होता है। तो मिनिमम 3 करोड़ रखना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट का डायरेक्शन हर जिले को है, मिनिमम 3 करोड़। तो ये जिले का जो, जैसा नासिक में पैठनी जैसा एक स्पेसिफिक कोर्स चला सकते हैं। हर जिले ने अपना जो पारंपरिक और जो अपनी जो स्थिति है भौगोलिक, वो स्थिति के अनुरूप ऐसे कोर्सेस ढूंढने चाहिए कि जो वो जिले में चलाना है, और वो कोर्सेस वो फंड से चलेंगे। तो ये ऐसे 3 स्कीमें अभी स्टेट में चलेगी। जैसा पंतप्रधान ये कहे, ये एक प्रमोद महाजन है, हमारा डिस्ट्रिक्ट का स्कीम है, और हर डिपार्टमेंट अलग अलग स्कीम चलाता है। जैसा रूरल डेवलपमेंट है, DDU-GKY चलाता है। ये MSRL है, महाराष्ट्र स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, जो ग्राम विकास के अंडर आता है, वो ये DDU-GKY स्कीम चलाता है। और गांव के बच्चे, ग्रामीण इलाके के बच्चे जो पुअर है, BPL है, या 1 लाख के अंदर फाइनेंशियली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, इनको उठा के लाके रेसिडेंशियल कोर्सेज DDU-GKY के अंदर चलते हैं। और हर जिले में ये DDU-GKY की सेंटर है। तो कौशल्य पंजी नाम का उनका एप्लीकेशन है, वो उसके ऊपर भी रजिस्टर कर सकते हैं। आदिवासी डिपार्टमेंट जो ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, एक्चुअली पूरा स्टेट का ऑफिस नासिक में है, डायरेक्टोरेट उनका, और नासिक जिले में अपने 8 तालुका ट्राइबल में आते हैं, और ये तालुका में भी बहुत सारा काम प्रोजेक्ट के अंदर से स्किल में चलता है। तो हर कॉलेजेस अभी स्किल डेवलपमेंट में हर कॉलेजेस में इम्पैनल होना चाहिए हमारे साथ, और इसके लिए भी हम एक सेपरेट
एक दीपाली मैडम को मैं बोलूंगा कि कैसा स्किल इंडिया पोर्टल पर अभी इम्पैनल होना है, इसके लिए हम तुरंत अभी एक 15 दिन के अंदर या 8 दिन के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक वेबिनार किया जाए और आपको एक प्रेजेंटेशन देके कि कैसा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके लिए हम तुरंत अभी आएंगे। तो सिर्फ मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको अभी हर कॉलेज को स्किल इंडिया पोर्टल पर आपने अभी ट्रेनिंग सेंटर करके आपको रजिस्टर होना जरूरी है, तो ही आप गवर्नमेंट के स्कीम में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे और आपके बच्चों को आप स्किल दे पाएंगे। और सरकार इसके लिए आपको पे करेगी एडिशनली, जो ट्रेनिंग के लिए लगेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका रहेगा, उसके लिए पैसा गवर्नमेंट देती नहीं है, लेकिन जो एक रेट डिसाइड हुए हैं, जैसा 35 रुपए से 60 रुपए तक अभी रेट है पर आवर पर कैंडिडेट, वो रेट्स आपको मिलेंगे। पूरा सिस्टम ऑनलाइन है, तो उसके लिए आप जा सकते हैं। जैसा स्किल डेवलपमेंट के लिए ये एक है, ऐसे इसके जैसा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी एंटरप्रेन्योरशिप गाइडेंस का लिए भी हम काम कर रहे हैं अभी। और अन्ना साहेब पाटिल कारपोरेशन हमारे पोर्टल पर ही एक ऑप्शन है, उद्योजकता करके उसमें है। जितने भी मराठा और ब्राह्मण कम्युनिटी के कैंडिडेट्स है, वो अपना करियर शुरू कर सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, या स्टार्टअप लेके 10 लाख तक ग्रुप होगा, 5 लोगों का ग्रुप होगा तो 50 लाख तक। अगर जो ग्रुप है उसमें 60% मराठा और ब्राह्मण कम्युनिटी के लगेंगे, बाकी दूसरे आप ले सकते हैं। और ये 5 लोगों का ग्रुप या 10 कितना भी कर सकते हैं आप। 2 के ऊपर हो तो ग्रुप हो जाएगा, 2 लोग करते हैं तो 15 लाख का लोन ले सकते हैं बैंक से, 3 लोग है तो 35 लाख का ले सकते हैं, 4 और 5 लोग है तो आप 4 लोग है तो 45 लाख का ले सकते हैं, और 5 के अब आप 50 लाख तक लोन लेके आपका स्टार्टअप या कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या जो आप शुरू कर सकते हैं। तो ये बच्चों को अभी आपको स्किल देके प्राइवेट में उनको ज्यादा अपने को ये करना पड़ेगा। और जो बच्चे स्टार्टअप में नहीं जाना चाहते, ऐसा हमारा डिपार्टमेंट का और एक चीज है, महाराष्ट्र स्टेट इनोवेशन सोसाइटी, जिसे हम MSINS कहते हैं। ये महाराष्ट्र स्टेट इनोवेशन सोसाइटी भी स्टेट में काम कर रही है स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी स्टार्टअप इंडिया जो मिशन है, उसके तहत ये राज्य का पॉलिसी आया है। हमारे पोर्टल पर वो पॉलिसी अवेलेबल है। MSINS के साइट पर आप जाइए, msins.in, ये साइट पर पूरा पॉलिसी अवेलेबल है। इंक्यूबेशन सेंटर्स है, अभी जैसा नासिक इंजीनियरिंग क्लस्टर है नासिक में, ये इंक्यूबेशन सेंटर है महाराष्ट्र इनोवेशन सोसाइटी का। जैसा संदीप यूनिवर्सिटी इंक्यूबेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ऐसा महाराष्ट्र इनोवेशन सोसाइटी का डिजिटल इम्पैक्ट स्क्वायर, जो TCS टाटा ट्रस्ट का जो इनिशिएटिव है, TCS का डिजिटल इम्पैक्ट स्क्वायर, ये CSR फाउंडेशन के तहत चलता है और पूरे भारत से बच्चे, ये की सोशल इनोवेशन सेंटर है कि महाराष्ट्र में कोई भी पूरा देश से बच्चे आते हैं और ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं स्टार्टअप्स में, तो उसके लिए इनोवेशन होता है और बाद में स्टार्टअप बच्चे कंपनी शुरू करके अपना करियर शुरू करते हैं। तो टाटा का बहुत बड़ा इनिशिएटिव पूरा इंडिया में पहला नासिक में शुरू हुआ है, डिजिटल इम्पैक्ट स्क्वायर। ये कुंभ मेला के टाइम में शुरू हुआ। उसकी एक जरूरत थी कि ये क्राउड कैसा मैनेज किया जाए, और कलेक्टर नासिक और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, SP कमिश्नर पुलिस, ये पूरे उसके मेंबर्स है बॉडी पर उनके, इन्होंने सोच के ये सोशल चैलेंज देते हैं बच्चों को, और ये डिजिटल इम्पैक्ट के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको, और वो चैलेंज पे इनोवेशन होता है और वो पूरा इनोवेशन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट होता है और बाद में बच्चे अपना करियर शुरू करते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो बच्चों को अभी अपडेट करना पड़ेगा, आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और इंडिया के स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों आपके बच्चों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। एग्जैक्टली सर, जैसे आपने अभी बताया कि मैं इन सबको, मेरे साथ जुड़े हुए सारे एकेडमिशियन, सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, इन सबको बताओ कि ये एक डिपार्टमेंट है। जैसे सर ने अभी बताया, तो सर के बताने में था कि वहाँ पे स्किलिंग भी है, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए भी कोशिश की जाती है, वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी कुछ स्कोप है, और वहाँ पे इनोवेशन वाला
अगर किसी को बिजनेस करना है तो उसके लिए भी प्रोसेस अवेलेबल है। तो ये चारों चीजें एक जगह पे होती है। अगर किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज, किसी भी इंस्टीट्यूट को अपने आप को अपने बच्चों के लिए स्किलिंग में उतरना होगा, तो सर जैसे आपने बताया कि जरूर हम अगला एक सेशन रखेंगे कि जिसमें हम इंस्टीट्यूट को बता पाए कि इंस्टीट्यूट ये स्किलिंग गवर्नमेंट की ओर से जो ये स्किलिंग का इनिशिएटिव है उसका सपोर्ट लेके कैसे आगे बढ़ सकता है, उनके बच्चों को ये सारी चीजें कैसे अवेलेबल करवा के दे सकता है। हाँ, इसके साथ इंस्टीट्यूट के लिए भी थोड़े से बेनिफिट होंगे, बट मुझे लगता है कमर्शियल बेनिफिट यहाँ पे इतना मायने नहीं करता, लेकिन बच्चों को एक कन्वेंशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ, प्रोसेस के साथ अगर स्किलिंग मिलता है तो मुझे लगता है कि सर ये इंस्टीट्यूट के लिए, बच्चों के लिए और मैं बोलती हूँ ये जर्नी के अंदर एज अ करियर पार्टनर बहुत अच्छा एक शुरुआत और एक प्रोसेस को हेल्प हो जाएंगी। वैसे ही सर जो आपने बोला महाराष्ट्र इनोवेशन सोसाइटी और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, सर जरूर जैसे आप हमेशा ईडीपी डेवलपमेंट के लिए बहुत काम करते हो, तो स्कूल एंड कॉलेजेस आपके साथ जुड़ के बच्चों में, स्पेशली कॉलेजेस बच्चों के साथ जुड़ के बच्चों के लिए एक एंटरप्रेन्योरशिप में एक नया फोरम स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल, और लास्ट में जब संदीप जी गायकवाड़ बोलेंगे डेवलपमेंट ऑफिसर, सर आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि तब अपने अगर डिपार्टमेंट के कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर किए जाए तो सारे इंस्टीट्यूट्स के लिए आसान हो जाएगा आप लोगों के साथ जुड़ना और डायरेक्टली आपके साथ कनेक्ट होना। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट एग्जैक्टली माइंड राजुल मैम, बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू एक्सक्लूसिवली। हम लोग जैसे आप लोग को बता दूं, हम लोग फेसबुक पेज पे लाइव है अभी और बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स मैम हमारे साथ कनेक्ट है और हमेशा के हमारे क्वेश्चन जो रिलेटेड टू करियर काउंसलिंग है, बिंग आई एम एज इवन अ पेरेंट, और यहाँ पे काफी सारे फैकल्टी मेंबर्स है जो एकेडमिक्स में होते हुए भी पेरेंट्स का भी एक रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अंदर मैम हमारे साथ फेसबुक से एक क्वेश्चन है आपके लिए कि क्या सच में साइकोमेट्रिक टेस्ट जरूरी होता है? हर बार जब भी करियर काउंसलिंग की बात करो तो चीजें साइकोमेट्रिक टेस्ट पे आके खड़ी हो जाती है और इसके पैसे, इसके चार्जेस और आने वाले रिजल्ट जो सिर्फ कंप्यूटर टेस्टेड और सिर्फ मैं बोलूंगी कि मशीन प्रूवन होते हैं, जहाँ पे बच्चों के साथ डिस्कशन का स्कोप कितना है, उसकी इच्छाओं को जानने का स्कोप कितना है, और वहां पे ऐसा क्वेश्चन आया है कि इज इट अ मनी गेम ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट? मैम से ये सीधा क्वेश्चन आपके लिए। आई नो व्हाट यू आर गेटिंग एट। मैं समझ रही हूँ कि कई बार ऐसा हो जाता है कि psychometric test is considered as you said a money game, that I will not say कि psychometric test 100% जरूरी है। बच्चे से बात करके, बच्चे से समझ के, पेरेंट्स से बात करके समझ के भी हम इस सोल्यूशन पे पहुंच सकते हैं कि बच्चे के लिए क्या राइट चॉइस होता है। बच्चे के इंटरेस्ट से समझ के कि वो क्या करियर लेना चाहता है, या बचपन से, या उसके स्किल्स वगैरह को समझ के कि उसके लिए क्या करियर चॉइस सही हो सकता है। एंड इट इज नॉट दैट कि हम एक साइकोमेट्रिक टेस्ट करते हैं, करियर चॉइसेस दे देते हैं और वहां पे जाके बात खत्म हो जाती है। Okay, before I go to that, I will tell you that psychometric test करना किस लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार एक बच्चा हमारे पास आता है और हम उस बच्चे को जान नहीं पाते हैं क्योंकि हम उसको इतने अच्छे से नहीं जानते हैं। तो ये एक प्रॉपर तरीके से समझना कि उस बच्चे का क्या स्किल सेट है, कि उस बच्चे का किस फील्ड में इंटरेस्ट होना चाहिए, कि उस बच्चे की पर्सनैलिटी किस चीज के लिए बनी है। So not more for the child, it is more for the career counselor to understand the child, जिसके लिए हम ये psychometric test करने की कोशिश करते हैं। And number one, that this psychometric test is more of a scientific tool. वो बहुत सारे साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को जो बहुत सालों से डेवलप किए जा रहे हैं उनके बेसिस पे साइकोमेट्रिक टेस्ट बनाया जाता है, जो डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस पूछ के, जो कई बार बच्चे को खुद को भी नहीं पता होता है कि उसका क्या है, नेचर क्या है। जैसे हम जब उसका पर्सनैलिटी को जब हम जज करते हैं तो हम उसके नेचर को जज करने की कोशिश करते हैं। तो वो प्रॉब्ली ज्यादा इट इज मोर फॉर द करियर काउंसलर टू अंडरस्टैंड कि वो बच्चा किस तरीके का है और वो किस फील्ड के लिए बना है। नंबर वन चीज ये होती है। और एक चीज ये होती है कि आज, एज आई टोल्ड सम टाइम बैक, कि आज देर आर मोर देन 500 और टू 550 ऑड करियर्स। सो आज अगर एक बच्चे का से आर्ट्स में या साइंस में या
कोई भी फील्ड में, कॉमर्स में है, पहले बहुत कन्वेंशनल चॉइसेस होती थी कि साइंस में बच्चा अच्छा है तो वो डॉक्टरी करेगा या तो इंजीनियर बनेगा. इफ ही इज गुड विद कॉमर्स सो ही विल डू बीकॉम, बीबीए और मे बी सीए. बट टुडे आज क्या हो गया है कि बहुत ज्यादा चॉइसेस हो गए हैं, and it is not practically possible for a child or for a parent to research so many choices. तो जब हम एक बच्चे का साइकोमेट्रिक टेस्ट करते हैं तो हमको उसके टॉप 4 या 5 उसके पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के बेसिस पे उससे बात करके, सो नंबर 1 ये होता है कि हम बच्चे से और पेरेंट से बात करते हैं, उसके बाद उसको समझने के बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है जो उसके चॉइसेस के हिसाब से 4 या 5 करियर चॉइसेस मिलते हैं. फिर ये हो जाता है कि नैरो डाउन हो जाते हैं चॉइसेस. जहां आपके पास इतने ज्यादा चॉइसेस थे, आपके 4 या 5 करियर क्लस्टर्स से मेरा मतलब है कि प्रोबेबली वो बच्चा इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए बना है, या फिर आर्ट्स एंड डिजाइन के लिए बना है, या फिर वो आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के लिए बना है. ऐसे 4 या 5 करियर क्लस्टर्स जब आ जाते हैं तब फिर हमारे चॉइसेस नैरो डाउन हो जाते हैं और फिर हम सिर्फ उन चीजों के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं कि ठीक है इसमें से क्या है जो मेरे बच्चे के लिए सही चीज है. बट डेफिनेटली व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज वी टेक इनटू कंसिडरेशन कि बच्चे का खुद का चॉइस क्या है, खुद का इंटरेस्ट क्या है, और वो दोनों चीजें को मैच करके फिर हम वी कम टू द कंक्लूजन कि बच्चे के लिए क्या है. So as I said, psychometric test is not important. अगर बच्चे को पता है, बच्चे से बात करके अगर हमारे को समझ में आ सकता है, so definitely without a psychometric test also career counseling can be done. थैंक यू. थैंक यू सो मच. बस हम लोग अभी एकेडमिशियंस हमारे साथ जुड़े हैं, उनके भी कुछ सवाल है आपके लिए, चाटे सर के लिए, और अगर हमारे साथ सर ज्वाइन करते हैं, डीन सर, तो उनके लिए भी. मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है मैम आपके लिए कि रिलेटेड टू बीइंग मी एज अ पेरेंट, मेरा बच्चा है, मेरी बेटी है जिसने अभी जस्ट 10th कंप्लीट किया है, और उसका अगर मैं देखने जाऊँ तो आई नो दैट कि हर ड्राइंग इज गुड और शी इज वेरी गुड इन क्रिएटिविटी. तो जब भी ये साइकोमेट्रिक टेस्ट की बात आई, हमने जब बात की, तो साइकोमेट्रिक टेस्ट के बाद यही रिजल्ट आया कि द चाइल्ड इज वेरी गुड इन क्रिएटिविटी, in designing, so the best part for her to go in a designing wala part. So just select any career which is related to designing. पर अगर अभी की अगर मोड में देखो तो सिर्फ आर्ट करना और सिर्फ ड्राइंग या पेंटिंग में करियर करना, इतना अपने आप को सीमित रखना शायद मुश्किल है. तो मुझे आप के लिए एक क्वेश्चन है मेरे पास कि व्हाट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शुड करियर काउंसलर हैज टू प्रोवाइड, बिकॉज ओनली आफ्टर टेस्ट एंड आफ्टर डिस्कशन इफ एनी करियर काउंसलर इज सेइंग कि भाई दिस बच्चे के लिए आर्ट्स इज गुड, बट आर्ट, साइंस, कॉमर्स ये सिर्फ एक डोमेन है जहाँ पे आदमी आगे जा सकता है, वहां पे जो खुलती अपॉर्चुनिटीज है वो करियर काउंसलर क्या बताता है और क्या उसको बतानी चाहिए? Yes, thank you मैम, वेरी गुड क्वेश्चन. लेट मी टेल यू, जैसे आज आप अपनी बेटी का बता रहे हैं कि वो आर्ट्स में अच्छी है, यूजुअली करियर काउंसलर्स, probably earlier what used to happen was कि करियर काउंसलिंग में आपने साइकोमेट्रिक टेस्ट दिया और आपके पास ये आ गया कि आपका बच्चा आर्ट्स में अच्छा है. बट वी डोंट स्टॉप देयर, हम यहाँ पे स्टॉप नहीं करते हैं. आज एक बच्चा अगर ह्यूमैनिटीज और लिबरल आर्ट्स को अगर हम एक फील्ड के जैसे देखें तो जो बच्चा आर्ट्स में अच्छा है, देयर आर सो मेनी एवेन्यूज दैट आर ओपन फॉर हिम. बहुत सारे ऑप्शन हैं. लाइक एक बच्चा मीडिया कम्युनिकेशन कर सकता है, जहां उसका डिजाइनिंग एंड आर्ट्स का जो स्किल है वो अगर वो विजुअल्स में अच्छा है तो वो विजुअल कम्युनिकेशन कर सकता है. वो एनिमेशन कर सकता है जहां वो अपने आर्ट्स के स्किल्स को यूज कर सकता है. वो ग्राफिक कम्युनिकेशंस में जा सकता है. अगर हम डिजाइनिंग ही एज अ फील्ड देखें तो अगर वो बच्चा डिजाइनिंग ही करना चाहता है तो डिजाइनिंग में इटसेल्फ देयर आर सो मेनी फील्ड्स. इन डिजाइनिंग यू हैव visual arts designing, you have textile designing, you have fashion designing, you have automobile designing, you have footwear designing जो probably किसी को पता भी नहीं है, you have product designing, industrial products designing differently. बच्चे के पास ऑप्शन है कि वो अप्लाइड आर्ट्स में जा सकता है. ये मैं आपको सिर्फ फ्यू जो मेरे को अभी आ रहे हैं दिमाग में आपको बता रही हूँ. उसके अलावा देयर आर सो मेनी ऑप्शंस दैट अ चाइल्ड कैन टेक ओनली इफ ही इज गुड विद डिजाइनिंग. एंड वंस इट कम्स कि हम ये ऑप्शंस देके बच्चे को नहीं देते हैं. आज अगर हमारे पास कोई बच्चा आता है तो हम उस बच्चे को डिजाइनिंग के लिए ये बताते हैं कि ये ऑप्शंस हैं, बट हम उसको हमारा जो डेटाबेस है वो भी उस बच्चे को दे देते हैं
जहाँ पे वो बच्चा ये देख सकता है कि अगर मेरे को अगर उसको से प्रोडक्ट डिजाइनिंग करना है तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग के फील्ड में उसके पास क्या उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, उसके अर्निंग्स किस तरीके से हो सकते हैं। क्योंकि आज अगर हम एक करियर देखते हैं तो वी बिलीव दैट हम करियर को सिर्फ आज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हैं, हम ये देखते हैं कि आज के 5 साल के बाद उसके क्या प्रोस्पेक्ट्स होने वाले हैं, मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में उसके क्या अर्निंग्स हो सकते हैं उसमें, कि वो वायबल ऑप्शन है भी या नहीं आज। बिकॉज एज वी आर प्रोग्रेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एआई एंड मशीन लर्निंग इतना ज्यादा आने वाला है कि कुछ स्किल्स माइट बिकम इररेलेवेंट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि मेरे इस करियर के लिए आगे जाके कितना फ्यूचर है। तो हम उसके बारे में बताते हैं क्या कंपिटेंसीज की जरूरत है उस पर्टिकुलर प्रोफाइल में, अगर वो इस फील्ड में जाता है तो उसके करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, कौन सी इंडस्ट्री में वो जा सकता है, उसका वर्क प्रोफाइल किस तरीके का होगा। एंड उसके अलावा फर्स्ट इनिशियली टू एक्सप्लोर एनी ऑप्शन आपके पास ये है, उसके बाद आप ये देख सकते हो कि उसके एंट्रेंस एग्जाम्स मुझे कौन से देने होते हैं। बिकॉज बहुत जरूरी है कि बच्चे को अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम देना है तो उसको मे बी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आगे जाके उसको समझ में आए कि अरे इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो मुझे 10th या 11th से ही तैयारी चालू करनी थी। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि बच्चा अगर 9th या 10th में ही होता है और तभी अगर उसको ये सब चीजें की नॉलेज हो जाती है तो वो उस हिसाब से अपना पूरा फ्यूचर प्रोसेस प्लान कर सकता है कि ये एंट्रेंस एग्जाम्स मुझे देनी है, ये कॉलेजेस हैं इंडिया में अब्रॉड में, मुझे ये स्कॉलरशिप्स मिल सकती है। बिकॉज नाउ एज वी नो एजुकेशन हैज बिकम प्रिटी एक्सपेंसिव, सो दीज आर द scholarships that are available. So we give them such a wide arena of knowledge is available to them कि ऐसा नहीं है कि आज बच्चा अगर आर्ट्स में अच्छा है तो वो ड्राइंग पेंटिंग डिजाइनिंग में ही जा सकता है, इतने सारे ऑप्शंस और इतना सारा इंफॉर्मेशन उसके पास है। सो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन दैट ही हैज he can explore everything and then take an informed decision. सुपर। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद हमने करियर काउंसलिंग के बारे में नहीं सोचा था। जितना हमने देखा है करियर काउंसलिंग एंड्स टू इन्फॉर्मिंग डोमेन कि दिस इज गुड फॉर दैट। बट जैसे आपने बताया मैम कि बहुत सारे डिजाइनिंग के अंदर पार्ट है, एक एग्जांपल लेकर चले आर्ट्स का, तो आपने बताया कि डिजाइनिंग में बहुत सारे डोमेन है और आपने जो भी बताया लाइक विजुअल बेसिस डिजाइनिंग है, फुटवेयर डिजाइनिंग है, तो ये सारे ही जितने सारे बताया, ऑटोमोबाइल डिजाइन है, मशीन डिजाइनिंग है, इन सब के अंदर अगर मैं इसी क्वेश्चन को लेकर चलती हूँ वापस चाटे सर के पास, बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि इससे जुड़ा हुआ एक स्किलिंग का पार्ट चाटे सर से जुड़ा हुआ है। क्योंकि चाटे सर मुझे बताएंगे कि जैसे भी मैम ने डिजाइनिंग के इतने सारे बताए, तो अपने स्किलिंग में, अपने स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जैसे NQR है सर, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे पेरेंट्स को, हमारे स्टूडेंट्स को और एकेडमिशियंस को बताएं कि अगर हमको इन सब चीजों के बारे में पता चल जाता है कि मेरे बच्चों के लिए डिजाइनिंग में इतने सारे डोमेन है और उस डोमेन से चलते गवर्नमेंट डिजाइनिंग के अंदर ही अंडर स्किलिंग कितने सारे फ्री प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है, अगर यही एक चीज को, यही एक धागे को अगर आगे खींचते हैं तो शायद मुझे लगता है ये कड़ी कंप्लीट होती है। बिकॉज राजुल मैम ने बोला है कि 9th-10th में अगर बच्चे का करियर काउंसलिंग होता है तो सही, लेकिन अगर वो स्टेज हमसे चली गई है और हमारे साथ अभी कॉलेज के बच्चे हैं, मेरे साथ इंजीनियरिंग के अगर कुछ एकेडमिशियंस है और उनका अगर डायरेक्ट क्वेश्चन हो कि माय स्टूडेंट इज नाउ इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट और अगर उसका ड्राइंग अच्छा है, उसका क्रिएटिविटी अच्छा है सर, तो आप उसके लिए स्किलिंग में क्या बताते हो? करियर काउंसलर उसके लिए बताता है कि ऑटोमोबाइल डिजाइन है या रोबोटिक का डिजाइनिंग है, ये उसके लिए सही रहेगा क्योंकि उसका क्रिएटिविटी अच्छा है। तो सर आप हमें बताएंगे कि ये सारे डिजाइनिंग के डिटेल्स उस बच्चे के लिए गवर्नमेंट की ओर से किस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है? जैसा शुरू में मैंने आप सभी को बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बना है और ये फ्रेमवर्क में गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया के लिए ऐसे सब छोटे छोटे जो स्किल्स है जो लगते हैं, तो ये स्किल्स के लिए डिफरेंट टाइप्स के कोर्सेज बनाए हुए हैं। तो जैसा अभी देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक वेबसाइट बनाई है, आप सब उसको देख सकते हैं,
nqr.gov.in। NQR का अर्थ है नेशनल क्वालिफिकेशन रजिस्टर .gov.in। ये साइट पर अगर गए और क्वालिफिकेशन का जो बॉक्स है वहां, अगर आपने सीधा वहां सिर्फ डिजाइन टाइप किया तो डिजाइन के 145 रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे, जैसा एक्सेसरीज डिजाइनर, एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स इन टूल डिजाइन एंड कैड कैम, एडवांस डिप्लोमा इन स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड एनालिसिस, एडवांस डिप्लोमा इन VLSI फिजिकल डिजाइन इंजीनियर। ऐसे 100 टाइप के कोर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफाइन किए हैं जो स्किल बेस है। हाँ, ये स्किल कहाँ मिलेगा, इसके लिए आपको एक तो महाराष्ट्र सरकार की साइट पर जाना होगा, MSSDS के साइट पर, जो स्किल kaushal.mahaswayam.gov.in ऐसा है, नहीं तो PMKVY official.gov पे जाना पड़ेगा। ये जो कोर्सेस है, ये कोर्सेस हर कॉलेज, कोई कॉलेज भी जिनकी कैपेसिटी है वो भी ट्रेनिंग प्रोवाइडर बन सकता है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज है तो इंजीनियरिंग कॉलेज के पास अगर ये एडवांस टूल है वो अपने करिकुलम में नहीं दे सकते, तो वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और इंडिया के साथ इम्पैनल होके अपने बच्चों को ये छोटे छोटे कोर्सेस वो दे सकते हैं। तो कैंडिडेट्स है, कैंडिडेट ने अभी 2 वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, एक तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साइट पर। सर मैं आप बोल रहे हो तभी ये 2 साइट शेयर करती हूँ। जैसे ये अपने पास अभी खुला है नेशनल क्वालिफिकेशन रजिस्टर nqr.gov.in, राइट। सो यहाँ पे उनको पूरी तरह से इंडिया में चलने वाले सारे ही स्किलिंग के प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी मिल सकती है, राइट। ये बच्चों को भी पता चलेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो हमारा ये अभी NSQF क्या है वही बता देता हूँ शॉर्ट में, कि 0 से 10 तक हमारी लेवल्स है। जैसा हमारा ग्रेजुएशन का बीकॉम का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल है तो हम बीकॉम बनते हैं, ऐसा ये स्किल में कोई भी स्किल ले लो आप, ये स्किल में 10 लेवल है और ये 10 लेवल में 1 से 10 लेवल है। 1 बोले तो प्राइमरी नॉलेज, 2 बोले तो थोड़ा सा उसका थोड़ा सा नॉलेज, 3 बोले तो उसका स्किल थोड़ा सा ऐड हो जाएगा उसमें, 4 लेवल बोले तो वो ट्रेनर हो सकता है, 5 लेवल बोले तो वो मास्टर ट्रेनर हो सकता है, ये और बाद में 3 और 4 लेवल में वर्कर भी हो सकता है, प्रोफेशनल भी हो सकता है, काम कर सकते हैं। हम 10 लेवल तक जाते हैं तो PhD है उसमें का, वो स्किल में का। तो अभी 1 लेवल से 10 लेवल तक गवर्नमेंट ने पूरा स्किल में ओपन किया है, और एग्जाम देके हर साल थर्ड पार्टी एग्जाम होता है, एग्जाम देके जैसा कोई भी एक स्किल ले लो, एक आधा स्पॉट वेल्डिंग का स्किल ले लो आप। वेल्डिंग में वेल्डिंग बहुत सारी टाइप की होती है, इसमें एक स्पॉट वेल्डिंग जो महिंद्रा कंपनी को लगती है, और उसका स्किल हमें पढ़ना है तो वो माइनर स्किल है, यानी हमें डीप में जाना पड़ेगा, शार्पन है। तो वो स्किल में जाने के लिए पहले तो हमें 1 की एग्जाम देनी पड़ेगी, 2, 3, 4, और उसमें हम 10 तक PhD कर सकते हैं। अभी बच्चों ने पारंपरिक एजुकेशन के साथ स्किल में अगर वो मास्टर करते हैं तो उनका करियर निश्चित बहुत ये हो सकता है। तो ये kaushal.mahaswayam.gov.in, इसके ऊपर भी कोर्सेस अवेलेबल है, आप कोर्सेस पे जाइए, मिलेंगे आपको। और NQR ये तो पूरा देश का रजिस्टर है, इसमें हर कोर्स का सिलेबस पता चलेगा, उसमें स्किल्स कौन से आने चाहेंगे वो भी पता चलेंगे। किसी ट्रेनिंग सेंटर को अगर ट्रेनिंग खोलनी है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या चाहिए वो भी उसमें है, सब डिटेल्स का सिलेबस डिजाइन है वहाँ, आप वो सिलेबस देख भी सकते हैं और अपना करियर वो कोर्सेस में कर सकते हैं। थैंक यू सर, मैं ये शेयरिंग बंद करती हूँ अभी। और जैसे हमने अभी दिखाया कि सर ने बताया, जैसे NQR का एक है जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जो स्किलिंग अवेलेबल है वो है, और हम जान सकते हैं विद अगर हम करियर काउंसलर की हेल्प लेते हैं और वो हमें डिजाइनिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज बताते हैं, तो जो डोमेन वो बताते हैं, जो कॉलेजेस और जो इंस्टीट्यूट वो बता रहे हैं, उसके साथ गवर्नमेंट की ओर से हमारे लिए क्या क्या अवेलेबल है, जो विच इज solely available free of cost and from the best institutes like all of us, जो भी रजिस्टर करेंगे इन सब के लिए, तो वैसे ही इंस्टीट्यूट्स में वो अवेलेबल होते हैं जो आज अभी सर ने बताया, उसके बारे में जानकारी हमें NQR से मिल सकती है और एज वेल एज हमें महास्वयं के पोर्टल से मिल सकती है। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट kaushal.mahaswayam.gov.in, ये कौशल्य का पार्ट gov.in, ये 2 वेबसाइट से अवेलेबल है। सो वी आर ट्राइंग टू अपील ऑल स्टूडेंट्स, ऑल पेरेंट्स एज वेल एज ऑल academicians, so please visit to this sites and understand
कि कॉलेजेस मेरे स्टूडेंट्स के लिए, मेरे बच्चों के लिए, या स्टूडेंट्स खुद भी अगर एक्सप्लोर करना चाहे तो करियर काउंसलर जब इतने सारे डोमेन देता है तो वो डोमेन के बारे में अगर और डिटेल चेक करने हैं तो ये सारे गवर्नमेंट ऑफरिंग्स भी अवेलेबल है जो हम देख सकते हैं। हर बार इतना पैसा खर्चा करके एजुकेशन में उतरने की, स्किलिंग करने की जरूरत नहीं है जब बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल academicians, those who are with us, if they have any question in their mind, please raise their hand and फिर मैं उनके लिए ये सेशन ओपन करती हूँ कि हमारे पास अभी 2 पैनल एक्सपर्ट्स हैं, so you can ask your questions to them. Anyone would like to ask any question? हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे सर इंस्टीट्यूट से, लाइक जेम्स इंग्लिश स्कूल, रोहिणी मैम। Hello, I'm Dr. Anuradha Jaiswal. I'm also from James English Medium School. So please Yes, ma'am. project the questions on from Mrs. Rohini, Dr. Rohini Joshi. Yes, Dr. Rohini Joshi. We are unable to connect with her, ma'am. Yeah, fine. All right. Can you ask the question? No, there are 2-3 questions. Mr. Bhushan Moekar, he's head of James English Medium School also. He had posted a Yes, question. we have your question. So should Okay, we sir. ask Can on we just behalf put of the questions then? All right, you can post the question, ask the queries. Mr. Bhushan Moekar has put the queries. Okay, fine. Yes, Mr. Bhushan Moekar, you can talk directly. If we can. All right, I have a query, sir, ma'am. Can I put a question directly? Mm-hmm. I He can unmute himself. You can also ask the question, ma'am. All right, there is one question I wanted to ask. Now, आप लोग जब बात कर रहे थे कि भाई skill development and all, and ours is a school, still grade 12. So हम चाहते थे कि भाई NEP के recent policies में changes आए हैं regarding inclusion of skill development at the school level. So how do you? मैम, हमें जितना आपका क्वेश्चन समझ में आया है, अकॉर्डिंग टू दैट, सर स्कूल लेवल पे स्किलिंग से रिलेटेड क्या अपॉर्चुनिटीज है, शायद मैम का ये क्वेश्चन है। यस, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया एजुकेशन पॉलिसी लाया है। ये पॉलिसी में तो अभी इंक्लूड हो ही जाएगा, उसका तो नहीं, लेकिन करंटली भी अभी स्किल डेवलपमेंट स्कूल लाइफ में भी है। जैसा महाराष्ट्र सरकार का व्यवसाय शिक्षण प्रशिक्षण संचालनालय, डायरेक्टोरेट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये हर जिले में जैसे वही उसके अंदर ITI चलते हैं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर हर तालुके में काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में। तो उनके वैसे टेक्निकल स्कूल्स भी है, हर तालुके में एक टेक्निकल स्कूल सरकार की है। और जो मैडम जैसी जेम्स इंग्लिश मीडियम जैसी स्कूल्स है, ये स्कूल्स ये इनके साथ कनेक्ट होके अपने बच्चों के लिए टेक्निकल एजुकेशन दे सकती है। कोई भी कोर्स हो, आप बहुत सारे कोर्सेस है, जैसा इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, वेल्डिंग है, ऐसे बहुत सारे कोर्सेस है जो 8th और 9th क्लास में आप बच्चों को दे सकते हैं और आप टेक्निकल एजुकेशन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने और एक कमेटी बनाया है कि 9 स्कूलों में, जनरल स्कूलों में, स्कूल एजुकेशन में अभी स्किल डेवलपमेंट कैसा इनकॉर्पोरेट किया जाए, और कुछ दिनों में ही उनका रिपोर्ट आ जाएगा और 1-2 सालों में होलिस्टिक ऐसा स्किल एजुकेशन महाराष्ट्र में शुरू हो सकता है। तो हमें उसके लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन अभी आपकी संस्था अगर आप हमारे साथ इम्पैनल होना चाहती है तो आप जरूर आ सकते हैं, और आपके बच्चों को 8th और 9th में 15 साल के आगे, हमारा जो प्रमोद महाजन कौशल्य विकास अभियान है, ये 15 साल और उसके अलाउ करता है स्किल एजुकेशन के लिए। तो आप स्किल दे सकते हैं।
दूसरी चीज आपने क्वेश्चन भी पूछा था कि कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए क्या है, तो बहुत सारे कोर्सेस है। कॉमर्स में तो आप बहुत सारे अलग अलग अकाउंटिंग है, जीएसटी है, बाकी अलग अलग टाइप के कोर्सेस बच्चों को दे सकते हैं, और टैक्सेशन है, वो छोटे छोटे कोर्सेस मिलके आप दे सकते हैं। जियो चल रहा है इंटरनेट? दीपाली मैम। कौन सा कनेक्शन? यस मैम, आई होप कि आपके क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूट्स के लिए भी कि अगर स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ जुड़ता है तो बच्चों का हॉबी या बच्चों का लाइकिंग देख के हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं बच्चों से रिलेटेड। राजू मैम, डू यू हैव सम पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस टू शेयर विद जेम्स स्कूल? That अभी as sir has said that skills कितना important है, and they can definitely at the age of 8th 9th it is very good that एक जो हमारा जो process है of career counseling also, that should also simultaneously begin at that is the age when the child should start exploring. As teachers we can always guide the child, but जब होता है तो उधर बच्चों का जो एज होता है वही वो सही एज होता है that the kid starts exploring. So once the child gets an opportunity to start exploring all the options they have, and then along with skill development together, then they can decide कि बच्चे के लिए exactly at this stage, जैसे सर ने बोला 15 plus, तो exactly career counseling के लिए also this is what we, though I don't say that बच्चा 11th 12th में होता है तभी भी after the child we know that the child is made for science, then we can explore all the opportunities. Even graduation level पे हमारा counseling हो सकता है, but अगर 9th 10th को अगर हम एक age पकड़ें, so that is somewhere the perfect age for a child to start exploring, and along with the skill development I think a child can be very well prepared to face the challenges of the job opportunities that he has. थैंक यू सो मच। सर, हमारे पास और एक क्वेश्चन है, इज देयर इज एनी एज रिस्ट्रिक्शन ऑफ दिस कोर्सेज? जो भी कोर्सेज हम अभी बता रहे थे NQR पे और कौशल्य महास्वयं पे, वहां पे कोई एज रिस्ट्रिक्शन है क्या? Yes, there is a age restriction. In Government of Maharashtra scheme, candidate must have age completed 15 years. 15 years complete होना चाहिए तो ही वो स्किल एजुकेशन ले सकता है। 15 के नीचे स्किल एजुकेशन, फिर स्कूलिंग में जाना होगा, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ कनेक्ट होके फिर वो 8वीं में अगर स्कूल ने कनेक्ट कर लिया तो उनको स्किल मिल सकता है, जो उसका एग्जाम भी होते हैं और बच्चे के स्किलिंग का ये भी बढ़ सकता है। मैं और एक राजू मैडम के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ कि अगर बच्चा करियर काउंसलिंग किस इम्पोर्टेंट है, अगर हम सचिन तेंदुलकर जैसा उदाहरण हम समझते हैं कि अगर बचपन से बच्चों का अगर इंटरेस्ट हम पहचान पाए और वो इंटरेस्ट को पैशन देके और उनका करियर अगर उसमें कर पाए, तो ही जो आजकल जो सक्सेसफुल जो लोग अपने को दिखते हैं मार्केट में, वो पूरे ऐसे ही है कि जिनका वो पैशन था। फिर वो कोई कला हो, आप म्यूजिशियन ले लो, आप क्रिकेटर ले लो, आप कोई एक्टर ले लो, ऐसे कोई भी आप जो स्किल लेंगे, जो स्किल अगर पैशन है और वो पैशन लेके हम उसको करियर चुनने देते हैं, तो वो बच्चा जिंदगी में बहुत एक्सेल कर सकता है। अगर सक्सेसफुल होना है तो एक्सेल करना है तो करियर काउंसलिंग, पहले तो करियर काउंसलिंग उसका पहले इंटरेस्ट समझना जरूरी है, और इंटरेस्ट समझ के हम बच्चों को अगर एजुकेशन देते हैं। बहुत सारे स्कूल्स ऐसी है कि 8वीं के स्तर पे ही करियर काउंसलिंग, करियर असेसमेंट करती है और उनके पेरेंट्स को गाइड करती है कि आपका बच्चा इस तरह से एक्सेल हो सकता है। Exactly, sir. Exactly. Sure.
सर जैसे ही हम मतलब ये सारे प्रोजेक्ट के पहले ही राजुल मैम से बात हो रही थी, तभी हम लोग की बात हुई थी कि जब हम पेरेंट्स बन जाते हैं शायद, तो हम लोग बहुत सोचते हैं कि मेरे बच्चे का मैथ्स कमजोर है और मेरे बच्चे का साइंस कमजोर है, तो हम उसी के पीछे लग जाते हैं उसको उसका वो चीज इंप्रूव करने के लिए। पर मुझे लगता है अगर हम ये आइडेंटिफाई कर ले कि मेरे बच्चे का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, और अगर हम उसको पुश करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्किलिंग, विद द हेल्प ऑफ कोर्सेज, तो मुझे लगता है कि हम उस बच्चे की लाइफ और करियर के एक्सेल करने को बहुत ज्यादा सपोर्टिव बन सकते हैं। तो मैं बोलूंगी कि ये फोरम के अंदर राजुल मैम जैसे करियर काउंसलर विल हेल्प अस टू फाइंड आउट द स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ अ चाइल्ड, and like the department what you coached sir or what you headed by sir, तो with the help of institute conventional education के साथ गवर्नमेंट का स्किलिंग डिपार्टमेंट उस बच्चे को उसी हॉबी या उसी जो चीज आपने बताई अभी, और हम लोग बोलेंगे जो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसी के अंदर ज्यादा स्किल करके उसका लाइफ में करियर अपॉर्चुनिटीज देके जल्दी सेटल होने की कोशिश में उसको करा सकता है, और लाइफ टाइम एक सेटिस्फैक्शन और एक हैप्पीनेस है काम करते हुए कि हाँ जो मुझे अच्छा लगता है वही काम मैं कर रहा हूँ। तो ये सारा फोरम, सारा प्लेटफॉर्म इसी कोशिश में है, यही चीजें करना चाहता था, और मुझे लगता है कि हम इस ऑब्जेक्टिव पे आज सेशन लिए हैं। आई रिक्वेस्ट राजुल मैम की हमको ना कुछ क्वेश्चंस है कि बिकॉज ऑफ टाइम लिमिटेशन वी आर अनेबल टू कम टू यू, बट दे आर आस्किंग फॉर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इफ यू कैन शेयर मैम, प्लीज शेयर विथ दी फेसबुक हमारे जो लाइव कनेक्ट है उनके साथ। और सर संदीप गायकवाड़ सर, आई रिक्वेस्ट यू कि ड्यूरिंग योर vote of thanks you please share your contact details because we have that inquiries also. Yes मैडम sir. एक बात और बोलना चाहता हूँ, yes sir please. आप परमिट करके। अभी सब जो प्रेक्षक है उनको एक बात और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक स्किल कंपटीशन करता है हर 2 साल में, और ये वर्ल्ड लेवल पर भी एक वर्ल्ड स्किल कंपटीशन होती है हर 2 साल में। तो 2 साल में स्किल कंपटीशन होती है। पिछले 2-3 सालों में महाराष्ट्र ने उसमें बहुत सारा अपने बच्चे प्रदेश गए हैं, और वो बच्चे 8वीं 10वीं पास होके कोई कंपनी में स्किल लेके काम कर रहे हैं। ऐसे थे छोटे छोटे स्किल लेके, वो स्किल में अगर वो मास्टर बनता है, कोई फिटर है या डीजल मैकेनिक है या कोई ब्यूटी पार्लर की ब्यूटिशियन है, वो अगर वो स्किल में मास्टर है तो 21 साल पूरे होने चाहिए। कोई भी ये कंपटीशन में, कोई एजुकेशन की उसमें ये नहीं है, कोई भी वो स्किल कंपटीशन में भाग ले सकता है, और उसमें बहुत सारा नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल और वर्ल्ड लेवल पर स्किल कंपटीशन में अपना करियर आजमा सकते हैं। और वो अपना अगर स्किल कंपटीशन से वो आते हैं तो बहुत सारी कंपनियां उनको अपॉर्चुनिटी देती है। ऐसा अभी 2-3 सालों में आइडेंटिफाई हुआ है। तो वर्ल्ड स्किल कंपटीशन आप अगर गूगल में टाइप करिए तो आपको पता चलेगा कि असली स्किल कंपटीशन है, और उसके लिए नॉमिनेशन और सब चीजें कब शुरू होगी। तो ये डिस्ट्रिक्ट का आईटीआई और ये डिपार्टमेंट वो स्किल कंपटीशन होल्ड करते हैं, तो हर 2 साल में ये वो होती है। तो स्किल में करियर है, अभी सिर्फ 12वीं 10वीं पीएचडी ये करके कुछ ज्यादा ये नहीं होने वाला है, तो वो करके भी कुछ स्किल लेके हमें एक्सेल करना है अभी। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन है राखी परदेशी मैम का, वी आर जस्ट गोइंग टू एंड दिस सेशन, बट एक ये क्वेश्चन ले लेते हैं, इज डिस्टेंस लर्निंग एज इफेक्टिव एज स्कूल एजुकेशन? मैम शायद ये क्वेश्चन अभी तो हाल इस फोरम के साथ जुड़ा नहीं है, बट फिर भी अगर मेरे 2 पैनल मेंबर में से कोई इसका जवाब देना चाहे कि डिस्टेंस लर्निंग इज इट एज इफेक्टिव एज स्कूल एजुकेशन? I would like to answer this question, Dipali ma'am. Yes. Distance learning, there are many times that for due to some reasons कोई अगर नहीं कर पाता है regular schooling, so we definitely say that distance learning, especially if you are going for graduation level, then IGNOU, Symbiosis, there are a lot of organizations that have distance learning options, and जो बहुत recognized होते हैं जो आप कर सकते हो, नंबर 1। एंड अगर ऐसा भी होता है कि कोई बच्चा फाइनेंशियली इज नॉट एबल टू सपोर्ट, पेरेंट्स नहीं सपोर्ट कर पाते हैं एंड ही हैज टू वर्क और वो रेगुलर स्कूलिंग नहीं कर पा रहा है, तो NIOS has the option where you can go. NIOS is National Institute for Open Schooling, I guess the full form is.
where the child can go and give his exams without attending regular schools. So yes, distance learning is definitely effective if the child is not able to go in for regular schooling. चाटे सर भी कुछ मैं बताना चाहते थे. Yes, sir. ऐड करना चाहता हूँ. आप सबको पता होगा कि लातूर जिले में रेनापुर करके एक गांव है और वहाँ के रेनापुर करके एक आईएएस बने. एक 4-5 साल पहले की बात है. उनके पिताजी प्रोफेसर थे. उन्होंने वो बच्चों को 12वीं के बाद रेगुलर कॉलेज को नहीं डाला. उन्होंने उनको पुणे में भेजा और डिस्टेंस लर्निंग करके उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया. पैरेलली उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी किया और वो आईएएस बने. अभी वो कहाँ है पता नहीं. लातूर में ही म्युनिसिपल कमिश्नर थे पिछले साल तक. अभी वहां से वो ट्रांसफर हुए हैं. तो डिस्टेंस एजुकेशन भी इफेक्टिव है. उससे कोई मायना नहीं रखता. अगर आपका पैशन है और आप एक स्किल या बच्चों का इंटरेस्ट पकड़ के उसको अगर एक्सेल करने के लिए आप लाते हैं तो कोई मायने नहीं रखता रेगुलर एजुकेशन और डिस्टेंस एजुकेशन. ऐसा मुझे लगता है. मेरे ख्याल से दोनों भी एक्सपर्ट हमारे यही बताना चाहते हैं कि मैम मुझे लगता है स्कूल लर्निंग, स्कूल एजुकेशन इज अ लव ऑफ हार्ट. शायद मुझे लगता है ये हमेशा हमें अच्छा लगता है कि अगर हम स्कूल लर्निंग में है, स्कूल एजुकेशन में है, तो किसी के लिए भी स्कूल में, कॉलेजेस में लाइव फोरम पे स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ सीखना. लेकिन डिस्टेंस लर्निंग ये फैसिलिटी है उन लोगों के लिए जो लोग शायद ये चीज लाइव स्कूल फोरम पे अवेलेबल नहीं करवा सकते. तो मुझे लगता है डिस्टेंस लर्निंग ऑफ कोर्स एज हम उसको ऑप्शन बोल के लेते हैं, फैसिलिटी बोल के लेते हैं, और अगर हम उसकी मेथडोलॉजी पे वर्क करते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ शायद इफेक्टिव हो सकती है. ये दोनों भी एक्सपर्ट यही समराइज करना चाहते थे कि इट इज ऑप्शन जहाँ पे नहीं है कुछ भी, और वहां पे अगर डिस्टेंस लर्निंग से अच्छा मिलता है तो मुझे लगता है आज हम डिस्टेंस लर्निंग के फोरम से वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी के साथ पढ़ाई कर सकते हैं. वो रिसोर्सेस को, वो टीचर्स को जानने की कोशिश कर सकते हैं. शायद ये डिस्टेंस लर्निंग की देन है, ये टेक्नोलॉजी की देन है. शायद इसके पहले की जनरेशन को ये पॉसिबल नहीं था. स्कूलिंग ऑफ कोर्स वी लव, बट ये भी चीज उतनी ही मायने रखती है टू गेन द नॉलेज फ्रॉम वेरेवर यू. Yeah, on this point, I want to just add one thing. Some time ago, I had read a quote where जिसने बोला था that learning is the new currency that we have to make use of the other workforce that is available to us. So I think it is more about the ability to learn. आप स्कूल में लर्न करो, डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू लर्न करो, बट इट इज दैट यू नीड टू हैव दैट लर्निंग एजिलिटी एंड द एबिलिटी टू लर्न. तो आप कहीं पे भी जाओगे, आप एक्सेल करोगे. Exactly. I think that we are full with questions and now सर मुझे लगता है कि हम लोग को ये सेशन पहले ही जो थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ था ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच, तो हमको लगता है कि हमें ये सेशन अभी वाइंड अप करना चाहिए. होप वी आंसर्ड ऑल क्वेश्चन. एंड राजू मैम, अगर आप आपका नंबर शेयर कर सकते हो तो प्लीज शेयर कर दीजिए, या फिर मेल आईडी और एनीथिंग व्हाट यू कैन शेयर. और नंबर इट्स 8484898297. मैं चैट बॉक्स पे भी डाल देती हूँ ये for the schools and colleges that are connected to us. The number is 8484898297. I'll just share it on the chat box as well. Ma'am, your email ID too. Yes, I will share it. My email ID is Rajul Kastia, that is RAJULKASTIYA numeral 1 @gmail.com. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर डिटेल्स. हमने हक से आपके नंबर्स मांगे हैं और कांटेक्ट डिटेल्स मांगे बिकॉज वी हैव क्वेरीज. आई होप कि लोग जेन्युइनली आपको कांटेक्ट करेंगे और आपसे मतलब नॉलेज लेने की होड़ में आगे बढ़ेंगे. और सर हम ये सेशन चाटे सर, अगर आप बोलते हो तो हम ये सेशन संदीप गायकवाड़ सर के हाथ में देते हैं फॉर द वोट ऑफ थँक्स. नमस्ते संदीप गायकवाड सर. सर आपल्या बरोबर आहेत. सर इज दी डेव्हलपमेंट ऑफिसर फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट.
स्किल डेव्हलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप अँड एम्प्लॉयमेंट. सर, सेशन तुमच्या हातात फॉर द वोट ऑफ थँक्स फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम विजडम एक्स्ट्रा. We are really thankful to all school members, from all channel partners, supporters, especially Nikhilesh Shalmali and as well as Sandeep sir, कारण की तुमचा पण सपोर्ट राहिलाय. कदाचित तुम्ही वोट ऑफ थँक्स करत असताना तुमचं कोणी थँक्स करणार नाही, बट येस ऑफकोर्स वी ऑल आर होस्ट. बट थँक्यू सो मच फॉर द एंटायर टीम. येस संदीप सर. थँक्यू मॅम. जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र नाशिक आणि विजडम एक्स्ट्रा नाशिक यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज या ठिकाणी वे टू बिल्ड फ्युचर या करिअर मार्गदर्शन कार्यक्रमाचे या ठिकाणी आयोजन करण्यात आलं होतं. अत्यंत चांगल्या प्रकारे हा कार्यक्रम या ठिकाणी पार पडलेला आहे. आजच्या युगामध्ये पारंपरिक शिक्षण घेताच कौशल्याला सुद्धा या ठिकाणी खूप महत्त्व आहे आणि विविध क्षेत्रामधील कोणकोणत्या कौशल्य संधी आजच्या युवकांना उपलब्ध आहेत आणि कौशल्याधिष्ठ शिक्षणाचे महत्त्व पालकांना तसेच अकॅडमिशियन्स यांना समजण्यासाठी आजचा हा कार्यक्रम आयोजित केला होता. आजच्या या कार्यक्रमामध्ये राजूल कास्तिया मॅम, संचालक हेड स्टार्ट, त्याचप्रमाणे जिल्हा कौशल्य विकास उद्योजकता व मार्गदर्शन केंद्राचे सहाय्यक आयुक्त श्री चाटे सर यांनी या ठिकाणी सहभाग घेऊन जे शंका आणि प्रश्न उपस्थित झाले या सर्व शंका आणि प्रश्नांना एकदम व्यवस्थित उत्तरं दिली. त्याचप्रमाणे या कार्यक्रमामध्ये नाशिक तसेच बाहेर औरंगाबाद, अहमदनगर येथील सुद्धा बरेच कॉलेजेस आणि इन्स्टिट्यूट सहभागी झाले होते. मी सर्वप्रथम श्री चाटे सर, राजूल कास्तिया मॅडम यांचा या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. त्याचप्रमाणे आस्था स्किल्स, गुरु गोविंद सिंग इंजिनिअरिंग कॉलेज, RK कलानी ज्युनियर कॉलेज, जेम्स इंग्लिश मीडियम स्कूल, MVP's KBT कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, पंचवटी एज्युकेशन सोसायटी या सर्वांनी सुद्धा आजच्या या कार्यक्रमामध्ये चर्चासत्रामध्ये सहभाग घेतला. त्यांचे सुद्धा या ठिकाणी मी आभार व्यक्त करतो. त्याचप्रमाणे आजच्या या कार्यक्रमाला सपोर्ट करणारे मिसेस स्वाती शहा, व्हाईस प्रेसिडेंट स्वयंशक्ती, मिसेस नंदिनी रामचंदानी, प्रेसिडेंट इनर व्हील क्लब ऑफ जन नेक्स्ट, मिस्टर दीपक शहा, व्हाईस प्रेसिडेंट रोटरी क्लब ऑफ नाशिक नॉर्थ, मिस्टर समीर शहा, डायरेक्टर सुमेरी एज्युटेक, त्याचप्रमाणे विजडम एक्स्ट्राची संपूर्ण टीम आणि जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राची टीम या सर्वांचे या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. आणि आमच्या कार्यालयाचा कॉन्टॅक्ट नंबर मी या ठिकाणी चॅट बॉक्समध्ये शेअर करत आहोत. आमचे कार्यालय आपल्या मदतीसाठी नेहमीच तत्पर राहील. ज्याप्रमाणे चाटे सरांनी सांगितलेलं आहे की ज्या कॉलेजेसला कौशल्य विकासासाठी आमच्यासोबत यायचंय त्यांचं आम्ही या ठिकाणी स्वागतच करतो. आणि आम्ही चाटे सरांनी सांगितलं की ज्या कॉलेजेसला स्किल इंडिया पोर्टलवर रजिस्ट्रेशन करून आमच्या कौशल्य विकास कार्यक्रमामध्ये सहभागी व्हायचंय त्यांच्यासाठी सुद्धा आम्ही लवकरच एका वेबिनारचं या ठिकाणी आयोजन करणार आहोत. मी पुन्हा एकदा दीपाली चांडक मॅडम यांचे सुद्धा या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो की त्यांनी हा कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी सर्व तांत्रिक सहाय्य उपलब्ध करून दिलं आणि त्यांनी या कार्यक्रमाचे मॉडरेटर म्हणून काम पाहिलं. या ठिकाणी मी सर्वांचे आभार व्यक्त करून आजचा हा कार्यक्रम संपला असे जाहीर करतो. धन्यवाद. थँक्यू. सर्वांचं खूप खूप आभार. दीपाली मॅडमचे खूप खूप आभार. Thank you so much. खूप खूप आभार. Thank you so much, Dipali ma'am, Wisdom Extra. Thank you so much for this opportunity. Thank you all. Thank you so much. Thank you all.